ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. ہم نے کتاب زکوٰۃ جو ہے وہ شروع کیا تھا اور اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، وہ تب جب یہ سب انفرادی ہو، لیکن اگر ایک کا مجموعہ دوسرے کے ساتھ یعنی کیش ہو اور ساتھ میں سونا ہے یا کیش ہو یا ساتھ میں چاندی ہو یا تجارت ہو ساتھ میں سونا یعنی مجموعی ہو تو پھر جو ہے 52.5 تولے چاندی کا اعتبار ہوگا. سمجھ آ گئی؟ یہ تو ہم نے پڑھا تھا. آگے جو ہے کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے اور کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں عبارت. الزکوٰۃ واجبۃ علی الحر المسلم. زکوٰۃ جو ہے یہ واجب ہے کس چیز پر؟ آزاد پر. کیونکہ غلام پر زکوٰۃ واجب نہیں، کیونکہ غلام کی ملکیت جو ہے وہ ان کی آقا کی ہوتی ہے، اسی وجہ سے. مسلمان پر واجب ہوتا ہے کیونکہ کافر جو ہے وہ عبادات کا اہل نہیں ہوتا. بالغ پر واجب ہوتا ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 3 لوگوں سے جو ہے وہ کیا اٹھایا گیا ہے، ان میں سے ایک کو بچہ بھی ہے. سمجھا؟ ان میں سے ایک بچہ جو ہے اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے. عاقل ہونا، عاقل اسی وجہ سے کیونکہ مجنون بھی جو ہے وہ عبادات کا اہل نہیں ہوتا. سمجھ آ گیا؟ اذا ملکا. تیسری شرط یہ ہے، اچھا ایک اور شرط ہے کہ اذا ملک نصابا ملکن، جبکہ اس کے پاس پورا ملک ہو. پورا ملک سے مراد یہ ہے جب انفرادی طور پر جو ہے صرف 7.5 تولہ سونا ہو تو جب تک 7.5 تولہ سونے تک نہ پہنچے تب تک جو ہے وہ واجب نہیں ہوتا ہے. وہ کس صورت ہے کہ 1 روپے پیسہ بھی موجود نہ ہو. ہمارے استاد محترم فرماتے تھے کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے. سمجھ آ گئے کہ کسی عورت کے پاس صرف اور صرف 7.5 تولہ یا 5 تولہ یا 4 تولہ سونا اور اس کے پاس ہو پیسے نہ ہو. سمجھ آ گیا؟ اور ساتھ میں جو ہے وہ یعنی اور اگر اسی طرح جو ہے وہ کس چیز کیا ہو چاندی ہو تو پھر 52.5 تولہ چاندی کا اعتبار ہوگا. ان سب کا دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. کیا 5 اوقیہ سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور 1 اوقیہ جو ہے وہ 40 دراہم کا ہوتا ہے اور 40 کو جب 5 میں ضرب دے تو 200 دراہم آتا ہے. اور آج کل 200 دراہم کا اعتبار وزن جو ہے وہ 52 تولہ چاندی کا ہے. اور 5 اونٹ سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے اور 5 اوسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. بس چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب زکوٰۃ کو مقدار کے ساتھ مقدر کیا ہے کس چیز کے، یعنی زکوٰۃ تب واجب ہوتی ہے جب یہ چیزیں موجود ہو. تو اسی وجہ سے جو ہے علماء نے جو ہے اس کے وزن کو برقرار رکھا. اور آج کل کے حساب سے 52 تولہ چاندی اور سونے کے حساب 7.5 تولہ چاندی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 20 مثقال سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. 20 مثقال سے کم میں مثقال ہو. سمجھ آئے؟ مثقال نہیں ہے وہ موبائل والا مثقال نہیں، مثقال. سمجھ آئے؟ خوف کے ساتھ ہے مثقال. میم سا خوف الف لام. 20 مثقال سے کم میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے. تو 20 مثقال کا آج کا اعتبار جو ہے وہ 7.5 تولے سونے کا اعتبار کیا گیا ہے. اچھا بہرحال اذا ملک نصابا ملکن تامن، جب کوئی شخص جو ہے جس وقت وہ نصاب کامل کا مکمل طور پر مالک ہو جائے، یعنی جس دن یا رات صبح جس وقت اس کے پاس کیا ہو جائے ہو 52 تولہ چاندی یا جو مقدار میں نے بتا دیا اتنا آ جائے تو تب جو ہے یہ صاحب نصاب کا ہے. بس وہ اپنے ڈائری میں اسی دن کو نوٹ کرے گا. اگلے سال اگر اتنا ہی نصاب ہو اور اس سے زیادہ ہوا ہو لیکن اگر کم ہوا ہو تو پھر تو زکوٰۃ ہے، کیونکہ نصاب اس وقت پورے سال کے بعد جو ہے اس پر واجب نہیں ہو، کیونکہ اب نصاب جو ہے پورا نہیں ہے. یعنی سال کا شروع اور سال کے آخر کا اعتبار ہوگا، درمیانی سال کا اعتبار نہیں ہوتا. یعنی درمیان میں کم زیادہ ہو سکتا ہے لیکن جس دن اس پر واجب ہوا ہو جب 1 سال پورا کر کے وہی دن شرعی سے اعتبار سے 10 دن کم کر کے. سمجھ آ گئی ہو؟ تو پھر جتنا یعنی نصاب پورا ہو تب جو ہے اس پر واجب ہوگی. لیکن اگر سال سے پہلے جو ہے وہ سارا کا سارا چوری ہو گیا یا ختم ہو گیا خرچ جو بھی ہوگا، سمجھ گئے، یعنی آخری دن میں اس کے ساتھ نصاب پورا نہیں تھا تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا اعتبار نہیں ہوگا، پھر جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وحال علیہ الحول، اور اس پر سال گزر جائے. کیا ہو جائے؟ سال گزر جائے. سال گزرنے میں بھی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقوله صلی اللہ علیہ وسلم لا زکاة فی مال حتی یحول علیہ الحول، کہ کسی مال میں بھی زکوٰۃ نہیں آتا کہ اس پر سال گزر جائے. سمجھ آ گیا؟
اچھا ولیسا اب کون کون سے کن کن لوگوں پر زکوٰۃ واجب نہیں وہ بھی بتاتے ہیں. ولیسا علی صبین اور نہیں ہے زکوٰۃ کس چیز پر بچے پر, ولا مجنون اور نہ مجنون پر, ولا مکاتب اور نہ مکاتب پر. مکاتب جو ہے میں نے بتایا تھا کہ اس غلام کو کہا جاتا ہے جس کو آقا کہے کہ آپ مجھے 2000 روپے یا 3000 روپے جو ہے وہ کیا کرو مجھے ادا کرو پھر تم آزاد ہو, سمجھا کہ ہو, تو اس کو مکاتب کہتے ہیں. تو یہ اس کا گردن جو ہے وہ تو غلام ہوتا ہے, سمجھا کہ, لیکن اس کے ہاتھ جو ہے وہ آزاد ہوتے ہیں کمائی میں, یعنی وہ آزاد ہوتا ہے نا, یعنی آدھا آزاد کہلاتا ہے آدھا غلام کہلاتا ہے. تو آدھی کی غلام میں غلامیت کا اعتبار کرتی ہے, اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے جو ہے پورا کامل آزاد ہونا ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے. اچھا آگے فرماتے ہیں کہ کون سے مال پر زکوٰۃ واجب نہیں. دیکھو ومن کان علیہ دین یحیط بمالہ, آگے مسئلہ یہ بیان کرتا ہے کہ مثلا کوئی شخص جو ہے اس کے پاس جو ہے 52 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے یا یعنی نصاب ہے اس کے پاس, وہ صاحب نصاب ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہے وہ اس پر قرض بھی ہے, کیا بھی ہے قرض بھی ہے, سمجھا کہ. اب مثال کے طور پر وہ 4-5 تولے یعنی 5 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہے, سمجھا کہ, یا مثلا کرو 1 لاکھ روپے اس کے پاس کیش موجود ہے, سمجھے, بینک موجود بھی ہو لیکن اس کی ملکیت میں ہے, سمجھا کہ, لیکن وہ ساتھ میں جو ہے ایک کو زید کا کیا ہے 1 لاکھ روپے کا قرض دار بھی ہے, تو اس پر زکوٰۃ واجب, یعنی جتنا بھی نصاب ہو اس سے جو ہے اگر کسی پر قرض ہو تو اس قرض کو مائنس کیا جائے گا, پھر دیکھا جائے گا کہ صاحب نصاب یعنی وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لیکن اگر قرض کو مائنس کرنے کے بعد جو ہے وہ نصاب تک پہنچ رہا ہے تو ٹھیک ہے, اگر نصاب تک نہیں پہنچ رہا ہے تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہوگا. ومن کان علیہ دین یحیط بمالہ فلا زکوٰۃ علیہ, اور جس پر اس کے مال کے برابر قرض ہو اس پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ, لیکن اگر کسی کا مال جو ہے وہ کیا ہے قرض سے زیادہ ہو, کیا ہے قرض سے زیادہ, مثلا کسی کے پاس 2 لاکھ روپے ہے, 1 لاکھ روپے جو ہے وہ قرض ہے, تو 1 لاکھ تو مائنس کریں گے, 1 لاکھ جو ہے وہ کیا ہوں گے اس کے پاس باقی بچ گئے نا. تو آج کل جو ہے 52 تولے, کیونکہ کیش کبھی کس چیز کا اعتبار ہوگا, چاندی کا اعتبار ہوگا, 52 تولے چاندی کا اعتبار ہو, تو آج کل جو ہے پاکستانی اس یعنی 1442 ابھی تو 1443 ہے, 1443 ہے, تو اس آج کل اعتبار سے جو ہے وہ 81,000 کا وہ ہے, سمجھا. 52 تولے چاندی کی قیمت جو ہے 81,000 لگایا گیا ہے, سمجھے گئے, پاکستان کی حکومت نے. تو اب چونکہ 1 لاکھ جو ہے وہ صاحب نصاب بن گیا ہے, کیونکہ 81,000 سے زیادہ ہو گئے نا, تو اسی وجہ سے وہ جو 1 لاکھ بچ گئے اس کا زکوٰۃ دینا پڑے گا, سمجھا گیا. اور اس میں جو ہے تقریباً 2,500 آتے ہیں, 2500 آتے ہیں, سمجھے, 1 لاکھ میں 2500 آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ 40,000 میں 1,000 آتا ہے, ہر یعنی 40 کا حصہ واجب ہوتا ہے, تو 40,000 کا 1,000 جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, 1,000 جو ہے 40 حصہ ہے, اس 80,000 کا 2,000 جو ہے 40 حصہ بنتا ہے, سمجھا ہے. تو 20,000 کا کیا ہو گئے 500 ہو گئے, تو 2500 روپے بنتے ہیں 1 لاکھ کا, سمجھ آتی. اچھا وَإِنْ كَانَ مَالُهُ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ, اور اگر اس کا مال جو ہے وہ کیا ہو اگر اس کا مال جو ہے وہ اس سے زیادہ ہو, سمجھا کہ قرض سے کیا ہو زیادہ ہو, تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا زد کالفاضلہ اذا بلغ نصابا, زد کالفاضلہ, تو زائد کی زکوٰۃ, یہ جو زائد بچ گئے, سمجھے, بچے ہوا مال کا زکوٰۃ ادا کیا جائے گا اذا بلغ نصابا, جب وہ نصاب کو پہنچ جائے, سمجھا گئے. اگر نصاب کو پہنچنا جائے, کسی کا کیا تھا 1 لاکھ روپے تھی اس کے پاس ہو اور 80,000 کا مالک تھا نا, 80,000 کا قرضدار تھا, تو 1 لاکھ پر تو زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے نا, کیونکہ 52 تولے چاندی سے زیادہ ہے, اس کی قیمت سے زیادہ ہے. اب جو ہے اس نے جو ہے وہ کیا 80,000 کا وہ قرضدار تھا, 80,000 جو ہے وہ مائنس کر دیا, تو 20,000 بچ گئے. 20,000 پر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہو, کیونکہ 52 تولے چاندی کی قیمت کو نہیں پہنچے, تو اسی وجہ سے جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے. اب کون سی چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہے وہ بیان کر رہا ہے. وَلَيْسَ فِي الدُّورِ السُّكْنَى, اور نہیں ہے رہنے کی گھروں میں جو ہے وہ زکوٰۃ تو نہیں ہے. البتہ اگر تجارت کے لیے جو ہے پلاٹ وغیرہ خریدے گئے ہو, اسی طرح جو ہے گھر بنا دیے گئے, سمجھا کہ تجارت کی نیت سے خریدے ہو, سمجھے, تو پھر اس پر زکوٰۃ تو واجب ہوگی. وَثِيَابِ الْبَدَنِ, اور اسی طرح جو ہے بدن کے کپڑوں میں جتنی بھی زیادہ ہو, سمجھا کہ جتنی بھی زیادہ ہو, لیکن اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ واجب
नहीं होता। अलबत्ता कुर्बानी तो अलग है, अगर ज़रूरत असलियत से ज़ायद हो, समझ आ गई हो, तो फिर जो है वो कुर्बानी तो वाजिब वही है, लेकिन ज़ायद कपड़ों में जो है बदन के कपड़े चाहे कितनी ही ज़्यादा ना हो, 200 300, फिर भी ज़कात इसमें वाजिब नहीं हो। क्यों? क्योंकि ज़कात के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसा चीज़ है जो बढ़ने वाला हो। क्या हो? जो बढ़ने वाला। तो सोना हुआ, ये केश हो गए, और इस तरह तिजारत की ये 4 चीज़ें जो है ना, सोना, चांदी, केश और ये तिजारत, ये चीज़ें जो है बढ़ जाती है, इसमें नुमा पाया जाता है, समझ? तो इसी वजह से इस पर वाजिब है। तो चूंकि ये अगर चीज़ ज़रूरत असलियत से ज़ायद है, लेकिन इसमें जो है नुमा नहीं है, यानी नशनुमा नहीं पाता है, तो इस वजह से इसमें ज़कात तो वाजिब नहीं होती। व असासिल मनाज़िल, इस तरह घरेलू सामान जितनी भी ज़्यादा हो, समझ यानी 2 सेट हो, डिनर सेट हो, 3 हो, 4 हो, ज़रूरत से ज़ायद हो, तब भी वाजिब नहीं होता। देखो ये मसाइल समझा कि ये ज़रूरत पड़ेगी आप लोगों को, आगे आप लोग आलिमात बन रहे हो ना, तो फिर मसाइल पूछेंगे आप लोगों से इंशाल्लाह लोग। व दवा ऐसा ना हो गलत बताए। व दवा भी रुकू भी, और इसी तरह जो है सवारियाँ, क्या जानवर सवारी की, जानवरों में आजकल जो है वो गाड़ी होते हैं ना, आजकल क्या है गाड़ियां हैं, तो वो भी सवारी के कायम मकाम है, सवारी की जानवर के कायम मकाम है। तो अब किसी के घर में जो है 2-3 गाड़ियां खड़ी है, समझ क्या, एक जो है वो जरूरत में इस्तेमाल होता है, 2-3 जो है वो जायद है, तो जायदों पर भी जक़ात वाजिब है। हाँ, अगर ऐसा हो जिसका बार्गेन हो, समझ तिजारत इसमें करा हो, तो फिर इस पर जक़ात वाजिब होगी। वआबीदिल खिदमत, और इस तरह जो है वो खिदमत के गुलाम में भी ज़कात वाजिब नहीं है। वसलाहिल इस्तेमाल, और इस तरह जो है वो हथियारों का, यानी इस्तेमाली हथियार अपने साथ जो है कोई इंसान जो है अपने लिए जो है वो ज़रूरत के लिए रखे, यानी अपनी हिफाजती तदबीर के लिए न रखे, तो फिर इसमें भी वाजिब नहीं होता। अच्छा, आगे फरमाते हैं, अब अगर कोई किसी का हथियार का दुकान हो, समझ कि हथियार का दुकान हो, तो फिर इसमें वाजिब हो जाता है, समझ आ गया। अच्छा, तो देखो, वसलाहुल इस्तेमाल ज़कात वलैसा ज़कात, समझ आएगी, ये तो नहीं है कि ज़कात है, समझ, लैसा ऊपर आखिर शुरू में क्या है, वलैसा फी दूर सुकन वसियाबिल बदन वसातिल मनाज़िल व दवाबिर रुकूब व अबीदिल खिदमत व सलाहिल इस्तेमाल ज़कात, यानी ज़कात नहीं है। वला यजूज़ु अदाउ ज़कात, अच्छा आगे जो है ज़कात की अदायगी के लिए क्या शर्त है, नियत शर्त है। क्या नियत शर्त है, क्योंकि ये ज़कात जो है ये इबादत के कबील से है। किस चीज़ की कबील से है? इबादत के कबील से है, और इबादत जो है बगैर नियत के नहीं होती। नमाज इबादत से है कि नहीं है? बगैर इस नमाज बगैर नियत की नमाज नहीं होती। तो इस तरह ज़कात जो है वो भी एक इबादत है, और इबादत जो है वो बगैर नियत की नहीं होती। समझा, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब आगे बयान फरमाते हैं कि कौन सी जगह पर नियत, यानी ज़कात के लिए कब जो है नियत हो शर्त है, समझ आ गई। तो इसका जवाब ये है कि हो यानी 2 सूरतों में जो है वो अगर नियत किया जाए तो तब जो है ज़कात अदा हो जाएगा, समझ। वो कौन कौन से? अब ज़कात जो है वो ज़कात को अपने पैसों से अलहदा करती हुई है, समझे कि ज़कात को अपने पैसों से, अपने माल से क्या जुदा करती हुई भी अगर कोई नियत करे, और फिर बाद में जो है फ़कीर को देती हुई नियत ना करे, तब भी उसका नियत तो सही होगा और उसका ज़कात अदा हो जाएगा। और इसी तरह जो है देते हुए अलग करते हुए तो नियत नहीं की, लेकिन जो है फ़कीर को समझा कि जो मुस्तहिक है उसको देते हुए जो है वो क्या कर दिए, ज़कात की नियत की, तब भी अदा हो जाएगा। इन 2 सूरतों के अलावा जो है वो ज़कात अदा नहीं होता बगैर नियत के। तो देखो, वला यजूज़ु अदाउ ज़काति इल्ला बिनियतिन मुक़ारिनतिन लिअदाइन और मुक़ारिनतिन लिअज़्ल मिक़दारिल वाजिब। देखो, वला यजूज़ु अदाउ ज़काति, ज़कात का अदा करना वो जायज़ नहीं है, इल्ला मगर बिनियतिन मुक़ारिनतिन, मगर किस चीज़ के साथ हो, ऐसी नियत के साथ, मुक़ारिनतिन जो कि मुत्तसिल हो, लिअदाइन क्या ज़कात अदा करती हुई, क्या ज़कात अदा करती हुई, यानी जब ज़कात अदा कर रहा था, मुस्तहिक को दे रहा था, उस वक्त जो है नियत मुत्तसिल हो, समझ आ गई, यानी अदायगी के वक्त जो है नियत की, तो फिर उसका ज़कात अदा हो जाएगी। दूसरी नंबर पर औ मुक़ारिनतिन, या जो है वो नियत मुत्तसिल हो, किस वक्त हो, लिअज़्ल मिक़दारिल वाजिब, अपने माल से मिक़दार वाजिबा को अलहदा करती हुई, जुदा करती हुई, समझ आ गए। तो इसमें भी
जो है वो क्या हो जाए कि अदा हो जाए। यानी अपने माल से जो है ज़कात के माल को वो क्या कर रहा था, निकाल रहा था, तो नियत की कि ये ज़कात के पैसे है, समझे कि दूसरे बक्स में रख दिया, दूसरी अलमारी में रख दिया, तो तब भी इसका ज़कात तो अदा हो जाएगा। बाद में अगर मुस्तहिक के वक्त तो मुस्तहिक को देते वक्त नियत ना भी को तब भी जायज़ हो जाएगा। वमन तसद्दक़ बिजमीअ मालिही, आगे ये मसला बयान करते हैं कि अगर किसी ने पूरा का पूरा माल, क्या पूरा का पूरा माल जो है बगैर नियत के सदका कर दिया, समझ आ गए। अब देखो अब क्या है, इस माल पर तो ज़कात भी वाजिब है, समझ आ गई हो। अब उसने जो है इस पूरा का पूरा माल जो है वो सदका कर दिया, लेकिन इसमें किसी भी ज़कात की नियत नहीं की। तो यहाँ पर इमाम खुदरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ये एक ऐसा मसला है कि यहाँ पर भी बगैर नियत की भी ज़कात अदा हो जाएगा। वजह ये है कि पूरे माल में जो है एक ऐसा हिस्सा भी होगा जो ज़कात का है, समझ आ गए। देखो पूरे माल में जो है 40 हिस्सा ज़कात का है कि नहीं है। अब उसने 40वां हिस्सा भी जो है अगर गैर मुतय्यन है, यानी गैर मुतय्यन है, यानी बगैर नियत के अदा की, लेकिन मुतय्यन तो है ना कि इस पूरे माल में ज़रूर ज़कात का भी 40वां हिस्सा मौजूद है। पर जब मुतय्यन है तो इसी वजह से जो है उसको जो है बगैर नियत की भी ज़कात अदा हो जाएगा, समझ आ गई। देखो वमन तसद्दक़ बिजमीअ मालिही, जिस शख्स ने अपना पूरा माल जो है वो खर्च किया, वला यनवी ज़काता, तो उसका जो है वो क्या होगा, उसने किसी भी इसमें ज़कात की नियत नहीं की, समझ आए। सक़त फ़र्ज़ुहान हो, तो उसका ज़कात उसका फ़र्ज जो है वो क्या हो जाएगा, यानी ज़कात की फ़र्ज उसके ज़िम्मे से साक़त हो जाएगा, समझे। क्यों? क्योंकि वाजिब तो इसमें एक जुज़ हुआ है, समझ आ गए, 40वां हिस्सा हुआ है और वो इसमें मुतय्यन है कि नहीं है। तो इसी वजह से जो है वो इसको मुतय्यन करने की ज़रूरत ही नहीं है, अलबत्ता नियत की ज़रूरत जो उन्होंने नहीं की, लेकिन फिर भी अदा हो जाएगा, समझ आ गए। आगे जो है बाबू ज़कातिल इबल, अब यहाँ पर जो है ये कौन कौन सी चीज़ों में जो है वो ज़कात वाजिब होता है, वो तो मैंने बता दिया ना कि 4 चीज़ों में जो है वो ज़कात वाजिब होती है, समझ आ गए। वो कौन कौन से, एक तिजारत, एक सोना, एक चांदी और एक जो है क्या तिजारत, सोना, चांदी, कैश, समझ आ गए। ये 4 चीज़ें तो आजकल के हिसाब से मैंने बता दिया। वो जो दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के साथ ऊँटों में भी ज़कात वाजिब थी, समझ आ गया। इसी तरह बकरियों में भी ज़कात वाजिब थी, समझ आया। इस तरह गाय में भी ज़कात वाजिब थी, लेकिन चूंकि उनके लिए 2 शराइत थे, समझ आ गया। अगर ऊँट में ज़कात वाजिब हो या बकरी में ज़कात वाजिब हो या क्या है गाय में ज़कात वाजिब हो, तो उसके लिए 2 शराइत है। पहला ये कि वो ऊँट जो है या वो जानवर जो है, समझ आ गए, वो जानवर जो है वो साइमा हो, सीन के साथ, स्वाद के साथ नहीं है, साइमा हो, सीन अलिफ हमजा मीम ता, समझ, साइमा हो। अब साइमा जानवर किसे कहते हैं, साइमा जानवर उस जानवर को कहते हैं जो अक्सर साल क्या, जो अक्सर साल बाहर चरकर आते हो, जो अक्सर साल बाहर चरकर आते हो। दूसरा शर्त यह है कि उस पर साल भी गुजर जाए, इस पर से जिस तरह बाकी अमाल के लिए। तो देखो आजकल लोग जो है फार्म निकालते हैं, बकरियों का फार्म निकालते हैं, तो चूंकि वो तिजारत ही का वो होता है, समझ है कि क्या होता है, तिजारत का होता है, तो इसी वजह से वो तिजारत वाले क्या होते हैं उसके ज़िम्मे में आता है। जो आजकल लोग जो है वो क्या होते हैं, ये दूध के लिए पालते हैं ना, अक्सर जो 35 हो, समझ आ गए, 10 हो या जितने भी हो, तो 35 जो ज्यादा जानवर दूध के लिए पालते हैं, तो वो जो है उसका अक्सर साल जो है वो बाहर चरकर नहीं आते, समझ आ गए। वो तो फार्म ही में बांध कर आते हैं, अलबत्ता दूध दोहते हैं, समझ वो बेचते हैं होटलों पर, तो उन दूध के पैसों पर ज़कात वाजिब होगी, लेकिन खुद उन जानवरों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, समझ आ गए। तो इसी वजह से जो है मैंने वो 4 में जिक्र नहीं किया था, क्योंकि आजकल जो है ये मफकूद है कि यानी हो सकता है कि बाज़ पहाड़ों में ये वाक़या हो कि किसी के पास बहुत ज़्यादा जानवर हो और वो अक्सर साल जो है वो बाहर गुजारता हो, चर कर जाए, समझ आ गई। हालांकि आजकल लोग जो है वो जानवर पालतू कहलाते हैं, यानी घर ही में रहते हैं, समझ, साइमा जानवर नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने वहाँ पर जिक्र नहीं। लेकिन अगर किसी जगह पर हो ऊँट जो है वो क्या हो, घर यानी तिजारत के लिए ना हो, समझ आ गई हो, लेकिन फिर भी जो है वो अक्सर साल जो है वो क्या होता है बाहर चरका, तो फिर इसमें जो है वो ये इस हिसाब से जो है ये ज़कात वाजिब होगी। ये ज़कातुल इबल का जो है बहुत बड़ा हिसाब
है, समझ आ गई हो। मैंने जो है जब मैं तालिब थी तो मैंने ये जब मैं खुदूरी पढ़ रही थी तो मैंने इसका एक टेबल बनाया था, समझ आ गई हो। तो इनमें से जो है वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को किसी आप में से यानी ग्रुप पर तो नहीं भेज सकती, समझ आ गया, असातिज़ा कराम को तकलीफ होता है, लेकिन मैं जो है आप में से आप लोगों में से कौन कोऑर्डिनेटर है इसे यहाँ पर ही बता दीजिए। मिस सुमैया, ये कौन है, एहलिया, एलिया, मिसेस जुबैर, एलिया नुमान, आप में से किसको भेज दूँ, नाम बताओ यार, नंबर, तो फिर मैं इसको भेज दूंगी, फिर आप लोग सबको भेज दे, समझ आ गई हो। कोऑर्डिनेटर तो अनीला है, लेकिन आप किसी के नंबर पे भी भेज दें, बेशक मेरे नंबर पे भेज दें या सदफ के नंबर पे भेज दें। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगी, समझ आए, किसी नंबर पर भेजती हूँ वही नक्शा मैं भेज दूंगी, समझ आए, कि मैं दोबारा नहीं नक्शा बना सकती, वही वाला मैंने साफ लिखा है, समझ आ गया इंशाल्लाह, फिर वो आप लोगों को वो समझ आ गई। मैंने पूरा बनाया था, ज़कातुल इबल की भी बनाया है, ज़कातुल बकर की भी यानी गाय का भी बनाया है, सबका बनाया है, समझ आए, वो भेज दूंगी इंशाल्लाह। चलो अब पढ़ते हैं ज़कातुल इबल के बारे में, समझ आ गई हो। तो देखो, इमाम खुद की तफसीलात का आगाज किस किया, जानवरों से किया, समझ आ गए, और जानवरों में से ऊंट की, समझ आ गए। वजह यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात की जो खत तहरीर किए, समझ आ गया, ये उनका निसाब जो है ना, जो मैं इंशाल्लाह आगे बयान कर में आए, समझ आ गए, कि इतने हो तो इतना वाजिब होता है, इतने हो तो इतना वाजिब होता है, समझ आ गई हो। तो ये जो है वो हदीस मुबारक में जो है वो सबसे पहले ऊँटों की ज़कात का बयान है, तो इसी वजह से इमाम खुदरी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत का इत्तिबा करते हुए ऊँट से शुरुआत की। देखो, बाबू ज़कात इबिल, ये बाब है ऊँटों की ज़कात के बारे में। तो देखो, लफ्ज़ वलैसा फी अक़ल्ल मिन खम्सी दूदिन अजा, सबसे पहले तो ये बन लो, ये समझ लो कि 5 ऊँट क्या 5 ऊँट से कम में ज़कात वाजिब नहीं है, क्या 5 ऊँट से कम में ज़कात तो वाजिब नहीं है। अगर किसी के पास 5 ऊँट से कम में ज़कात वाजिब नहीं, चाहे वो साइमा हो, चाहे वो उस पर 1 साल का, लेकिन जब 5 ऊँट हो जाए क्या, और वो जो है साइमा जानवर हो, बताया ना 2 शर्त इसके लिए है, यानी जिसमें अक्सर साल का अच्छा, और क्या हो, और दूसरा शर्त यह है कि इस पर साल गुजर जाए, तो जब 5 ऊँट हो जाए तो इसमें 1 बकरी वाजिब होती है, और बकरी से मुराद 1 साल की बकरी हो, समझ आ गए। 5 ऊँट से में जब 5 ऊँट हो जाए तो इसमें जो है वो क्या होते हैं, बकरी वाजिब होती है, 1 बकरी वाजिब जो 1 साल का, यानी जिस पर कुर्बानी होती है, वही वाला। अच्छा, अब शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह, आप लोग लेकर करें, मैं स्लो बयान करती हूँ, मैं भेज भी दूंगा अगर लिखना ना चाहे, लेकिन लेकर करें, समझ आ गया, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, अच्छा देखो, 5 से लेकर 9 तक, क्या 5 से लेकर 9 तक जो है, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 5 से लेकर 9 तक जो है इस पर 1 बकरी वाजिब, यानी अगर किसी के पास जो है 5 हो या 7 हो या 6 हो या 8 हो 9, समझ आ के, तब भी यही 1 बकरी वाजिब होगी। ये 5 से लेकर 9 तक जो मैं कीती हूँ ना, ये 6, 7, 8, इसको अफ़वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफ़वा। अफ़वा से मुराद ये है कि ये माफ है, यानी अगर किसी के पास 5 हो तब भी 1 ही बकरी वाजिब होती है, किसी के पास 6 हो तब भी यही 1 बकरी वाजिब हो जाती है, किसी के पास 7 हो तब भी यही है, यानी 5 से लेकर 9 तक 1 ही बकरी वाजिब होती है, समझ आ गए। फिर जब 10 हो जाए, क्या हो जाए, जब 10 हो जाए तो फिर 2 बकरियां वाजिब हो जाती है, क्या जब 10 हो जाए तो 2 बकरियां वाजिब हो जाती है, कहाँ तक हो, 16 तक, समझ आ गए। अगर किसी के पास 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, यही 2 बकरियां, क्या कहाँ तक हो, 14 तक, 16 नहीं 14 तक, समझ आ गए। 10 से लेकर 14 तक 2 बकरियां, फिर जब 15 हो जाए तो फिर 3 बकरियां वाजिब होती है, क्या हो जाए, 15 हो जाए तो 3 बकरियां वाजिब होती है, कहाँ तक, 19 तक, यानी 15, 16, 17,
18, 19 तक यही 3 बकरियां वाजिब हो जाती है, 19 भी शामिल है। लेकिन जब 20 हो जाए तो 4 बकरियां वाजिब होती है। क्या हो जाती है? 4 बकरियां वाजिब हो जाती है 24 तक। यानी किसी के पास 20 हो यही 4 बकरियां, फिर जो है 21 हो यही 4 बकरियां, क्या हो 23 हो यही, 24 हो यही 4 बकरियां। लेकिन जब 25 हो जाए तो इस पर एक बिन्ते मुखाज वाजिब हो जाते हैं। बिन्ते मुखाज क्या है? ये ऊंट की बीटी को कहा जाता है, ऊंट की बीटी को। बिन्त इसको इसी वजह से किया क्योंकि बीटी है। मुखाज उसकी माँ मुराद है, यानी मुखाज की मानी है हामिला। जब कोई यानी बिन्ते मुखाज से मुराद वो ऊँटनी, वो ऊँट का बच्चा, वो उस ऊँटनी की बच्ची जो कि 1 साल पूरा करके दूसरे साल में दाखिल हुई हो। समझ आ गए? जो 1 साल पूरा करके दूसरे साल में दाखिल हुई है। बस अगर किसी के पास 25 ऊँट है तो उसमें जो है वो ऊँट की बच्ची, ऊँटनी की बच्ची वाजिब होगी जो 1 साल पूरा कर चुकी हो और किस चीज में दाखिल हुई हो? दूसरी साल में दाखिल हुई हो। अच्छा, बिन्ते मुखाज की वजह तस्मिया ये है कि मुखाज जो है वो किस चीज को कहा जाता है? हमल को कहा जाता है। तो चूंकि ऊँटनी जो है जब उसका 1 साल बच्चा हो जाता है तो वो दूसरी साल में हामिला हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इसी वजह से उसको कहा जाता है कि हामिला की बीटी, हामिला की बच्ची। समझ आए? तो बिन्ते मुखाज मीम खा अलिफ वादो, समझ आ गए? मुखाज इसी वजह से उसको है। यानी जब वो किसी के पास जो है वो 25 से लेकर 35 तक जो है क्या हो? ऊंट हो। समझ आ गए? और वो साइमा हो और उस पर 1 साल गुजर जाए तो उसमें जो है बिन्ते मुखाज वाजिब हो जाते हैं। यानी वो ऊँटनी की बेटी को कहा जाता है, वो ऊँटनी की बेटी जो 1 साल पूरा करके दूसरे साल में कदम रखा हो। समझ आ गए? अच्छा, फिर उस 35 तक की ही वाजिब है। लेकिन जब ऊँट जो है 36 हो जाए, क्या हो जाए? 36 हो जाए तो इसमें एक बिन्ते लबून लाम बा वाव लबन से है जो दूध को कहा जाता है। बिन्ते लबून उस ऊँटनी की बेटी को कहा जाता है, बच्ची को कहा जाता है जो 2 साल मुकम्मल करके तीसरे में कदम रखा हो। क्या? जो 2 साल मुकम्मल करके तीसरे में कदम। बिन्ते मुखाज 1 साल मुकम्मल करके दूसरे साल में कदम, यहाँ पर 2 साल मुकम्मल करके तीसरे साल में कदम रखा हो। इसको बिन्ते लबून इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि जो पहले साल में वो हामिला थी, अब यहाँ पर उसका दूसरा बच्चा पैदा हुआ है, वो उसको दूध दे रही है। यानी उस ऊँटनी की बच्चा जो दूसरे बच्चे को दूध दे रही है। समझे? बिन्ते लबून। अच्छा, 45 तक यही बिन्ते लबून वाजिब हो जाते हैं। यानी वो ऊँटनी की बच्ची जो 2 साल पूरे करके तीसरे में दाखिल हुई, यानी उसका उम्र इतना ही हो। समझ आ गए? अच्छा, 45 तक यही वाजिब हो जाते हैं। 46 समझ आ गए? 46 जब हो जाए तो इसमें एक हिक्का वाजिब हो जाती है। क्या? हिक्का वाजिब हो जाती है। समझ आ गए? किस चीज तक? 60 तक। कितने तक? 60 तक। 46 से लेकर 60 तक। समझ आए? इसमें वैसे तो आम में 5-5 का गैप आता था, लेकिन इसमें जो है 46-45 का गैप आया। 15 ऊँट यानी ऊँटों का गैप आया है। 46 जब हो जाए तो इसमें एक हिक्का, हाफ हा खौफ और आखिर में बोलता है खातून। समझ आ गए? अभी भारत में भी इंशाल्लाह आएगा। तो इसमें एक हिक्का वाजिब हो जाता है। समझ आ गए? कहाँ तक? 60 तक। हिक्का किसे कहते हैं? हिक्का जो है वो ऊँटनी है जो कि 3 साल पूरे करके 34 साल में दाखिल हुई हो। क्या? जो 3 साल पूरे करके 30 साल में दाखिल हुए, इसको हिक्का इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि अब वो बोझ उठाने के काबिल हो जाती है। क्या? वो बोझ उठाने के काबिल हो जाए, इस पर सवारी वगैरह हो सकता है। अच्छा, ये कब? 46 से लेकर 61 तक। आप लोगों को ये उर्दू की नंबर्स की समझ आ रही है ना? या इंग्लिश में भी बता दिया करो। अच्छा, 46 से लेकर 60 तक। समझ आ गए? तो यही है वाजिब हो जाते हैं। फिर जब 61 हो जाए, 61 हो जाए तो तब इसमें एक जज़ा वाजिब हो जाता है। क्या? जज़ा वाजिब होता है। जीम जाल आइन ता दो पिश्तुन जिज़ातुन। समझ आ गई? जज़ातुन।
कहाँ तक 75 तक, 75 तक वाजिब होता है, यानी 61 से लेकर 75 का एक जज़ा वाजिब हो जाता है। जज़ा किसे कहते हैं? जो 4 साल पूरा करके 5 साल में दाखिल हुआ हो, समझ आ गया क्या? हुई हो, समझ आ गया क्या? जो 4 साल पूरे करके 5वीं साल की उम्र में दाखिल हुई है। अच्छा, इसको जैसे इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि अब ये ऊँटनी जो है वो ऊंट के साथ तो जुफ्ती के काबिल हो जाता है, यानी आपस में लेन देन मिलाप जिसको कहते हैं, यानी जिस काम की वजह से जो है बच्ची मजीद नस्ल की अफजाई होती है, नस्ल अफजाई, समझे, जो जुफ्ती के काबिल हो जाते हो, तो इसी वजह से उसको जज़ा कहा जा सकता है। अच्छा, 61 से लेकर 75 तक यही जज़ा हो जाए, लेकिन अगर जब तादाद बढ़ जाए, 76 हो जाए, 76 हो जाए, तो तब जो है इसमें मजीद क्या होंगे? 2 बिन्ते लबून वाजिब होंगे। क्या? 2 बिन्ते लबून वाजिब होंगे, समझ आए? यानी वो 2 ऊंट की 2 बेटियां, 2 बच्ची जो कि क्या 2 साल मुकम्मल करके तीसरे में दाखिल हुई है, समझ, जो कि पहले मैंने बता दिया बिन्ते लबून का, लेकिन उसमें 1 बिन्ते लबून वाजिब था, यहाँ पर 2 बिन्ते लबून है। 90 तक, कहाँ तक? 90 तक, यानी अगर किसी के पास 76 हो या 90 के दरमियान हो तो इसमें 2 बिन्ते लबून ज़कात में देने वाजिब होंगे। यानी ऐसी ऊँटनी की बेटियां जो कि 2 साल मुकम्मल करके तीसरी साल में दाखिल हुई हो। अच्छा, थोड़ा मुश्किल है, समझ आ गई? 120 तक करती हूँ, आप लोग जो है इसको फटाफट अच्छी तरह याद करो, फिर मैं इंशाल्लाह आप लोग से कल सुनूंगी। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 90 तक ना, फिर 91 जब हो जाए तो इसमें 2 हिक्के वाजिब होता है। पहले 50 में जो है वो क्या होते, 1 हिक्का वाजिब था, 91 में जो है 2 हिक्के वाजिब है। 91 से लेकर 120 तक, 91 से लेकर 120 तक जो है 2 हिक्के वाजिब हो जाते हैं। ये तो हो गया पूरा निसाब। तो देखो 5 से लेकर 9 तक 1 बकरी, 10 से लेकर 14 तक 2 बकरियां, 15 से लेकर 19 तक 3 बकरियां, 20 से लेकर 24 तक 4 बकरियां, 25 से लेकर 35 तक 1 बिन्ते मुखास, 36 से लेकर 45 तक 1 बिन्ते लबून, 46 से लेकर 60 तक, क्या 60 तक 1 हिक्का, 61 से लेकर 75 तक 1 जज़ा, 76 से लेकर 90 तक 2 बिन्ते लबून, 91 से लेकर 120 तक 2 हिक्के, 5, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 24, 25, 35, 36, 45, समझ आ गई हो? 46, 50। तो देखो 25 से लेकर, वैसे तो 5 से लेकर 9, 10 से लेकर 14, 15 से लेकर 20 से लेकर 24, 5 का गैप था ना। फिर 25 से लेकर 35 तक जो है वो क्या आया? 10 का गैप आया, समझे के? फिर 36 से लेकर 45 तक 10 का गैप आया, समझे के? फिर 46 से लेकर जो है 60 तक 15 का गैप आया, समझे के? 61 से लेकर जो है 75 तक जो है 15 का गैप आया, 76 से लेकर 90 तक जो है 15 का गैप आया, 91 से लेकर 120 तक 20 का गैप आया, समझे? तो इस तरह याद रखो। अच्छा, इतना ही काफी है। थोड़ा सा अब इबारत पढ़ लेते हैं इसी के बारे में, समझे? ये बिल्कुल इसी तरह जो मैंने बताया ना, इसी तरह जो है हदीस में भी यही इबारत है, और हदीस और किस चीज में, और ये खुदूरी में भी यही इबारत है। देखो अब जितना हमने पढ़ा उतना ही जो है हम अभी पढ़ते हैं। देखो वलैसा फी अक़ल्ला मिन खम्सी ज़ूदिन मिनल इबली सदक़तुन, किस चीज़ में ज़कात वाजिब नहीं है? देखो, और नहीं है 5 ऊँट से कम में ज़कात, वलैसा और नहीं है फी अक़ल्ला फी खम्सी ज़ूदिन मिनल इबली 5 ऊँटों से कम में ज़कात, सदक़तुन से मुराद ज़कात वाजिब नहीं। फ़इज़ा बलगत खम्सा, पर जब वो पहुंच जाए क्या 5 तक, साइमतन यानी वो ऐसे हो जो कि अक्सर साल बाहर रहकर जो है गुजारा करती हो, वह हाल अल हौलो, और उस पर जो है वो क्या हो जाए, हो 1 साल गुजर जाए, फफीहा, तो बस इस 5 में शातुन क्या है, एक बकरी है, इलातिस है, कहाँ तक 9 तक, यानी 5 से लेकर 9 तक जो है एक बकरी वाजिब है। फ़इज़ा कानत
अशरा, पर जब वो 10 हो जाए फफीहा शातान, तो इसमें 2 बकरियां वाजिब है कहाँ तक, इला अर्बाई अशरतिन 14 तक। फैज़ा कानत खम्सा अशरता, पर जब 15 हो जाए फफीहा सलासु शियहिन, तो इसमें जो है 4 बकरियां 3 बकरियां वाजिब है इला तिसा अशरता के कहाँ तक 19 तक। फैज़ा कानत अशरीना, पर जब 20 हो जाए फफीहा अर्बा शियहिन, तो इसमें 4 बकरियां वाजिब है इला अर्बाई व अशरीना कहाँ तक 24 तक हो। अब जो है मजीद 10 का फर्क है। फैज़ा बलाग खम्सा व अशरा, पर जब 25 तक पहुंच जाए फफीहा बिन्तु मुखाजिन, बिन्तु मखाजिन, तो इसमें जो है एक मखाजिन एक ऊँटनी की बच्ची क्या होगा वाजिब होगी, जो कि 1 साल पूरा करके दूसरे में दाखिल हुआ है कहाँ तक, इला 35 तक। फैज़ा बलाग 36 पर जब 36 हो जाए फफीहा बिन्तु लबूनिन, तो इसमें एक बिन्त लबून वाजिब है इला 45 कहाँ तक को 45 तक, क्या 45 तक हो। फैज़ा बलाग 46 पर जब 46 हो जाए 46 हो जाए फफीहा हिक्कतुन, तो इसमें एक हिक्का वाजिब है इला 60 तक। मैंने हिक्का की भी तारीफ की जो 3 साल मुकम्मल करके जो है 34 साल में दाखिल हुआ है। फैज़ा बलागत 61 पर जब पहुंच जाए 61 तक फफीहा जज़अतुन, तो इसमें एक जज़ा वाजिब है इला 75 कहाँ तक 75 तक 75 तक। फैज़ा बलागत 76 पर जब वो पहुंच जाए किस कहाँ तक 76 तक 76 है तक फफीहा बिनता लबूनिन, बिनता ये असल में क्या था, बिनता नहीं था, लेकिन लबून की तरफ मुज़ाफ हुआ, इसी वजह से नून इजाफत गिर गया है। लबून 2 बिनती लबून इला 90 कहाँ तक हो 90 तक। वइज़ा कानत 91 जब 91 हो जाए 91 हो जाए फफीहा हिक्कतान, तो इसमें 2 हिक्के वाजिब होंगे इला 120 कहाँ तक हो 120 तक 20 तक होंगे। ये पूरा का पूरा जो है जिस तरह हदीस में जिस तरह ये इबारत में मज़कूर है, बिल्कुल इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उन्होंने ये ज़कात का जो है वो क्या ऊँटों की ज़कात के बारे में जो है ये एक ख़त में जो है ये निसाब लेकर था, समझ आ गई हो। तो इसी वजह से जो है बिल्कुल इसी तरह याद करना है जिस तरह जो है उसमें वाजिब है। इंशाल्लाह मैं जो है वो नक्शा भेज दूंगी, समझ आ गए, वो आप लोगों के लिए वहाँ पर वो क्या करना आसान होगा वहाँ से याद करना। अगर इसमें कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना यहीं पर इक्तिफा करेंगे। फिर 120 से आगे जो है इंशाल्लाह कल हम पढ़ लेंगे। मैं जो नक्शा भेज दूंगी आप लोग थोड़ा इस पर भी सरसरी नजर डालें ताकि कल का सबक आप लोगों के लिए आसान हो जाए। अलबत्ता अगर इसमें जो है कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकती हूँ। कोई सवाल है? कोई सवाल नहीं है, चलो ठीक है। इंशाल्लाह मैं वो टेस्ट चेक करती हूँ फिर वो कह दूँगी। चलो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।